Hello everyone, welcome back to Knock Knock Air Education and a very good evening to all of you. So as we have discussed yesterday about this course structure and what we are going to do in this course. So let's just start with this course. So the very first topic that we will be covering here is going to be field. Yesterday itself I have told you that I'll be starting with the field because it is very important for us to understand field. Fine. So we will understand initially what is the field, then we will go to the vector spaces, because everywhere whether we are studying vector spaces, subspaces, basis, dimension, linear transformation, its matrix representation, then if we talk about the LILD vectors, everywhere there is a role of field. Okay, even if you are studying eigenvalues, the role of field is there. Okay, sometimes what will happen, you will tell me, ma'am, the eigenvalues are existing, but actually they do not exist. Okay, because eigenvalues belong to where? Belong to field. So you have to see the matrix over which the matrix is defined. Okay, so all these kind of things revolve around what field. So it is very important to understand what is a field, because what happens most of the time, we start with the definition of vector spaces, and every time we came across this concept of field, and if we do not understand what is the field, it creates a problem. So that is why before starting with the vector spaces, it is very important to understand what is the field. Once we will understand it, throughout the whole course we can use it anywhere we want. Okay, what is a field? Field is, just a non-empty set, okay, with two binary operations. Okay, so let me write down, let F be a non-empty set with two binary operations, that are addition and multiplication, binary operations. Okay, then F is said to be a field. F is said to be a field. Okay, now we are going to study few conditions. So what is happening over here? I think आपका अभी ग्रुप थ्योरी का कोर्स चल रहा है, राइट? तो अब इस कोर्स में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अब सर ने आपको समझा दिया होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है. ठीक है, क्योंकि पहले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे. मैं प्रॉपर्टीज़ लिखने के बाद बोलती थी दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अबेलियन ग्रुप, सो दे गेट कन्फ्यूज. बट नाउ यू वोंट गेट कन्फ्यूज because already you have studied the concepts of these binary operations, okay, and group, then abelian group in the group theory course. Fine, so now we will understand that what are the conditions on behalf of which, if f satisfies them, we can call f as a field. So what things we should have before going to have the definition of field? We should have a non-empty set f, and we should have two binary operation, addition and multiplication. So then we will call f as a field if सबसे पहले वो f प्लस के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें. एंड व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज़? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ योर क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, and what does this closure property tells you? It tells you that for all elements or for all members A and B from this set F, whenever you add these two members, they always belong to the set F only. Okay, it means whenever you are adding any two members of this set F, they always belong to, or their sum always belong to the set F only. That means their sum should also be one of the member of the set F. Okay, so sometimes we also call this F as a collection of scalars, so that is also correct, because we call members of the field F as scalars. ठीक, second property हमारे पास क्या है? Associative. And what does the property of associative says? It says for all members A, B, C inside this set F, it does not matter on in which order you are adding them. First you add A plus B, then you add C, or you add B plus C, then you add it to A. It will always give you same result. And by closure,
because here you are adding two members, this sum will belong to f. Then again you are adding two members of f, again that sum will belong to f. So by closure in associativity, this a plus b plus c belong to f only. Fine. The next property we have is identity. And what does this identity property says? It says for every a inside f, there exists e inside f such that what will happen, that this a plus e and this e plus a will always give you a. It means for every member inside the set f, you will get a unique member inside the set f only, such that if you add e to any of the member of the set f, you will get the same member. Okay, so if, because this is usual addition, now if we solve it, we are getting e is equal to 0. And this e is equal to 0 is sometimes referred as what? This is referred as additive identity. Okay, because we are getting this identity element with respect to the binary operation addition. So it is very simple. You add 0 to any of the element of the set in whatever order you want, you will always get a. That is why this is called as the additive identity. That is a member, if added to any of the member a, it will always give us result as a. Fine. The next property we have inverse. And what does this inverse property says? It says for all a inside the set f, there exists b inside the set f only, such that what happens, if you add this b to a in any order, you will always get identity. Okay, it means for a particular element a, there exists a particular element b, such that if you add them, their sum will give you identity element. Here, because our e is 0 and this is usual addition, so b plus a is equal to 0. Now you see what you are getting, b as minus a. Fine. So this e will be minus a because you got additive identity as 0. So this b is called as additive inverse. Okay, this b is called as additive inverse. So अब इनके बारे में कुछ खास बातें हैं. क्या है ये जो एडिटिव आइडेंटिटी थी हमारे पास? ओके, एडिटिव आइडेंटिटी, this is a set based property. Okay, this is a set based property. It means in any set, the set will have a unique additive identity, right? It means if you have an element a which belongs to f, then also identity is going to be 0. If you have an element b which is not equal to a, for this also identity is going to be equal to 0. For any element which is in set f, its identity is going to be 0. So it means this identity is a set based property. So any set has unique identity element. Okay, this is an important thing. Then you have additive inverse. Okay, you have additive inverse. So additive inverse is what? It is the element based property. Okay, once we will do the examples, you will understand it more clearly. We have element based property. What does it mean? Element based property, if you have an element a1 inside f, then b1 is going to be its inverse. Okay, if you have an element a2 belong to f, then b2 is its inverse. a3 in f, then b3 inside f, it's going to be its inverse. So this is an element based. If the element changes, the additive inverse also changes. Okay, so these are few points that you should note down about the additive identity and additive inverse. So additive inverse of an element is also unique, just like additive identity of a set is unique. Fine, so I think you people understood this much. Then what we will be doing, we will be going to next properties. So these are the properties that we have covered. So कुछ और भी नाम कह देते हैं अलग अलग बुक्स में. अगर आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट f अंडर the binary operation addition or whatever binary operation is given, if it satisfies these four properties, then we call that
set F as a group. तो you can from here say that F is a group. बट इतने से काम नहीं चलेगा. एडिशन के रिस्पेक्ट में एक और प्रॉपर्टी आएगी जिसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव. ठीक है, कॉम्यूटेटिव क्या कहती है कि फॉर ऑल ए एंड बी विच बिलोंग टू सेट एफ, इट डज नॉट मैटर आप उनको किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हो. इट मीन्स a plus b will always be equals to b plus a. This is the property of commutative. So your non-empty set f जिसको आप field check करने की कोशिश कर रहे थे with respect to the binary addition, binary operation addition and multiplication, वहाँ पे addition के respect में इन 5 properties का satisfy होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर ये हो जाती है तो यहाँ से कुछ लोग डायरेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं, तो उसमें से वो फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं दैट योर f plus should be an abelian group. तो if these 5 properties get satisfied तो आप इसको कह देते हो कि आपके पास जो f plus है वो कैसे है, abelian group है. ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अभी भी हमारा जो f है वो फील्ड नहीं बना है. ठीक है, अभी भी हमें यहाँ पे कुछ काम करना है और वो काम क्या है, वो काम है f डॉट के रिस्पेक्ट में अब हम काम करेंगे, यानी f विद दी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या काम करना पड़ेगा हमको, सेम चीज़. पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे भी हम देखेंगे क्लोजर. ठीक है, क्लोजर क्या कि इफ़ यू टेक एनी 2 एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट एफ देन देयर मल्टीप्लिकेशन शुड ऑल्सो बिलोंग टू सेट एफ ओनली, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फील्ड. हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि सपोज आपको किसी सेट f को फील्ड चेक करना है. ठीक है, सो यू स्टार्टेड चेकिंग द कंडीशन. सबसे पहले आपने एडिशन के रिस्पेक्ट में स्टार्ट किया. इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन फेल्स, सपोज क्लोजर सेटिस्फाई हुआ, एसोसिएटिव हुआ, आइडेंटिटी फेल हो गया, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेल तो तभी होगा ना जब सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी. इनमें से एटलीस्ट एक भी प्रॉपर्टी अगर फेल हो गई देन डायरेक्टली यू कैन से f इज़ नॉट अ फील्ड और आपको आगे की प्रॉपर्टीज चेक करने की नीड नहीं है. ठीक है, सपोज एडिशन से स्टार्ट किया, अब उसने कॉम्यूटेटिव तक सब सेटिस्फाई कर लिया, देन यू विल गो टू एफ डॉट. ओके, सो वहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आप चेक करोगे क्लोजर. इन अ सिमिलर वे यू विल गो विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव क्या कहती है हमारे पास यहाँ पे, सेम फॉर ऑल ए बी सी फॉर 3 एलिमेंट्स इनसाइड सेट एफ योर a dot b dot c must be equals to a dot b dot c. Okay, and this will by closure belong to f only. Then here also you have what, you have identity, and in this case what is going to be the identity, let's just understand this. So the similar definition you will apply here also, that is for all a belonging to f there must exist a unique e belonging to f. Suppose we are calling this as e dash because we have called e for the addition, such that what will happen if you multiply them in any order. Again the definition is same. If e is the identity element, then if you operate it, whatever binary operation is given, you can operate according to that. So once you will operate it with any element of the set, it will give you that element only. Okay, and now since what will happen here, we are working with usual multiplication. So what you will do, you can take any of the part and you solve it. You take a common, e dash minus 1 equal to 0. So for all the a should not be equals to 0. It means there will be non-zero a also inside the set f. So what will happen, so e dash is equals to 1 will satisfy for all a, right? It will satisfy for all a. So what identity we got, the identity we got is 1, that is unity, and this is called as your multiplicative identity. And why we are calling it as multiplicative identity, because we are working with the binary operation multiplication, right? Just like in the previous one, we call it additive identity because this was the identity with respect to the addition. Fine, let's go to property number 4 and that is our inverse. इनवर्स के केस में बस यहाँ पे एक खास बात है, जैसे यहाँ हमने क्या लिखा था, फॉर ऑल ए. ओके, सो यहाँ पे भी हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बट फॉर ऑल नॉन ज़ीरो ए. दिस इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर. ओके, सो फॉर ऑल नॉन ज़ीरो ए
which belong to F, there must exist B dash, because we call B in case of addition B dash from the set F itself, such that what will happen, again the definition, whenever it will get operated with what, with the element, it will give you identity. Fine. And now in this case, what multiplicative identity we got, it was 1. Just now we have calculated. Now you keep it here, B dash A is equal to E dash, either you keep it here or here, it will give you same result. So what we are getting, we are getting B dash is equals to, because this is your 1, so we are getting 1 by A. This is going to be what? This is going to be your multiplicative inverse. Fine, multiplicative inverse. So I think that is very understandable. Why very understandable? Because here we can see that we want 1. So what number should we multiply with that given number so that we get 1? Obviously the reciprocal of that number. That is why now you will observe that they have said about the non-zero elements inverse. They are telling about the existence of the inverse of the non-zero elements, because if A becomes 0, this quantity will not be defined. So in case of multiplication binary operation, one thing that you have to remember is you have to search for the multiplicative inverse only for the elements which are non-zero inside the set F. Okay, and since we are calculating it with respect to binary operation multiplication, that's why we are calling it as multiplicative inverse. If we would have done it with respect to addition, we would have called it as additive inverse. Fine. So if your F dot satisfies these 4 properties, we will say that F dot is a group. But there is one more property which needs to be satisfied, and that is what? That is commutative. Commutative. And again you know it, that for all A, B which inside F, your A dot B must be equals to B dot A. This is called as the commutative properties. If all these 5 properties satisfy, you also say that F dot is in abelian group. So कई बुक्स में आप देखोगे ये जो हमने अभी तक 5 प्रॉपर्टीज लिखी, राइट, दिस A B C D E, देन हियर, देन अगेन हियर, तो वो क्या करते हैं, F प्लस की 5 प्रॉपर्टी लिखने की बजाय प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखेंगे F प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखेंगे F डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप, एंड देन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिख के वो डायरेक्ट दिखा देंगे कि क्या, कि हमारे पास F जो है वो फील्ड ऐसे बनेगा. बट अगर आपने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी है, आपको नहीं पता है, तो आपको वो अबेलियन ग्रुप से 5 प्रॉपर्टी खुद से समझनी पड़ेंगी. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द कंप्लीट थिंग. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या देखा कि F को फील्ड बनने के लिए F प्लस के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, F डॉट के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन अभी भी F फील्ड नहीं बनेगा जब तक ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई ना करे, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस. ठीक है. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस की खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि अभी तक हमने देखा कि F प्लस के रिस्पेक्ट में काम हो रहा था, यानी हर जगह बाइनरी ऑपरेशन एडिशन 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 यूज हो रहा था. देन F डॉट के रिस्पेक्ट में काम हुआ, यानी एवरीवेयर दे वर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एज द बाइनरी ऑपरेशन. नाउ दीज 2 लॉज विल गिव यू दैट हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को साथ में लेके काम करेंगे. तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, A डॉट B प्लस C, this should be for all A, B, C inside the set F. This should be equals to A dot B plus you should be having A dot C. एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन में. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेफ्ट साइड पे, दैट इज वाई समटाइम्स वी कॉल इट एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑल्सो. देन B is what, this is A plus B dot C, so this will be A dot C plus B dot C. And since multiplication is being operated from the right hand side, so this will also be called as the right distributive law. So total number of properties that we have is what, 5 properties from F plus, then 5 properties from F dot, and then these 2 properties from F, that is distributive law. So how many properties? 12. If your F plus satisfies all F plus dot satisfies all above
12 properties, then we can call f as a field. ओके एंड इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल मतलब हो गई, एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो दैट f इज़ नॉट अ फील्ड. ओके सो आप देखोगे तो इसको हम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा. ठीक है. सो दीज 4 प्रॉपर्टीज आर मस्ट फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट f टू बिकम अ फील्ड ओवर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. फाइन. सो अभी तो था ये थ्योरी वाला पोर्शन. अभी आई थिंक मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है 75%. नाउ यू नीड एग्जाम्पल्स. ओके सो नाउ वी विल बी डूइंग एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड एक्चुअली हाउ डू वी चेक अ नॉन एम्प्टी सेट ओवर द गिवन बाइनरी ऑपरेशंस आर फील्ड और नॉट. ओके सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स. So the first example that we will be doing is suppose I consider set of natural number. ठीक है, this is your set f given and you have those two binary operation addition and multiplication, and now you need to check whether this set of natural number is a field or not. Okay, so we have to check this. Now what we will do, we will start checking all the conditions one by one. Okay, so what we will do, we will start with f plus, that is n plus, इसके साथ स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पे क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे किसकी, क्लोजर की. तो आप सबको पता है, इतना तो आइडिया है कि इफ़ वी ऐड एनी टू नेचुरल नंबर वी विल ऑलवेज गेट नेचुरल नंबर. ओके सो आप अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल द प्रॉपर्टीज़ अगेन, आई एम जस्ट trying to explain you. Okay, so whenever you will add any two natural number, they will always give you, the sum will always be a natural number, so closure will get satisfied. Okay, then associativity always holds. You add natural number the way you want, it will give you always same result. Okay, this is the very basic property of the natural numbers. Then third one you have is identity. Okay, now we will see identity property. What does it says, that for all a belonging to, because f is natural number, there must exist e in natural number only such that your a plus e must be equal to e plus a. थोड़ा सा ऐसे भी आइडिया लगाओगे, बिकॉज n जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, एडिशन वहाँ पे लगा रहे हो. किसी भी रियल नंबर में ऐसा कौन से नंबर ऐड करें कि वो सेम ही रियल नंबर मिल जाए, हमें पता है 0. तो अगर आप देखोगे या इस इक्वेशन को भी लेके सॉल्व करोगे किसी भी एक को, सो व्हाट यू विल गेट, e इज इक्वल टू 0. बट आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी सेट के लिए जो अगर हम देख रहे हैं उनके एलिमेंट्स के लिए, एडिटिव आइडेंटिटी मस्ट बिलोंग टू द सेट ओनली. आप यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट e बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. पहले अगर आप प्रॉपर्टी भी देखोगे जो मैंने लिखी है, okay, let's come to this slide. See here that for all a belonging to f there exists e belonging to f, that is additive identity must belong to the set only. If it does not belong to the set, then we will say that e does not exist, right? So come here, e is equal to 0 तो आ गया, but from here we can see that e is equal to 0, it does not belong to natural number. What does it mean? That identity does not exist, एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. इसी प्रॉपर्टी से आप डायरेक्ट बोल दोगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ फील्ड. दिस इज़ द रीज़न. अभी तक क्या होता था, कोर्स शुरू होता था तो वहाँ पे हम मान लेते थे कि अच्छा ये फील्ड होगी हमारे पास, और नाउ वी विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स अराउंड दिस फील्ड ओनली. बट यू शुड नो द रीज़न वाई यू हैव नेवर हर्ड ऑफ नेचुरल नंबर एज अ फील्ड, and other set that we will be discussing, why they are not field, which property is failing over there, right? You should know, so that if somebody asks you that you are doing graduation in mathematics and you want to pursue your masters from IITs, then you should tell them that why set of natural number is not a field. Okay, so this is the reason. लेकिन क्या है, इतना सा बोल के ही हम बोल देंगे फील्ड नहीं है, बट फॉर other purposes, सपोज इफ समबडी आस्क यू ओके और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं इसमें नहीं होल्ड होगी. सो अब आप देखोगे यहाँ पे इन्वर्स, वैसे तो एक
नहीं हुई तो हम डायरेक्ट बोल देंगे फील्ड, बट यहाँ पे बस हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है वो होल्ड नहीं होगी। अब इनवर्स क्या कहते हैं, फॉर ऑल ए इनसाइड एफ देयर मस्ट एग्जिस्ट बी इनसाइड एफ सच दैट व्हाट विल हैपन, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू ई। अब पहली बात तो ये कि आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बी कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बट अगर सपोज किसी ने रख भी दिया चलो 0, बी प्लस ए इज इक्वल टू 0, बी आपको माइनस ए आ रहा है, यानी कि अगर 1 एक नेचुरल नंबर ले रहे हो तो इसका इनवर्स -1 आ रहा है, बट -1 डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर बिकॉज इनवर्स शुड ऑल्सो कम फ्रॉम द सेट एफ ओनली, दैट इज फील्ड से ही आना चाहिए वो, बट सेट एफ से तो आया ही नहीं, क्योंकि ई ही पहली बात तो नहीं आ रहा तो बी कहाँ से आएगा, तो इनवर्स भी फेल हो रहा है, ठीक है। सो दिस ऑल्सो फेल्स बिकॉज यहाँ पे ई नहीं आया तो यहाँ रखोगे क्या, तो बी कैसे निकलेगा, ठीक है। देन देर इज अ पॉइंट कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी ऑलवेज विल गेट सेटिस्फाई, यू नो दैट किसी भी दो नेचुरल नंबर को कैसे भी ऐड कर लो, ए प्लस बी बी प्लस ए, दे विल गिव यू सेम रिजल्ट, ओके। सो कम्यूटेटिविटी विल गेट सेटिस्फाई। नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करें, सो multiplication of two natural number will give you natural number only, fine, okay. Then if you see about the associative property, that will also get satisfied. These things you have learned in very small classes. Then identity, so you know that a into e dash into a should be equals to what, a only. So you know that a, then e dash -1 equal to 0, e dash is equal to 1. Even if you don't calculate it, because we have already seen that for the multiplicative identity that is equals to 1. So e dash is equals to 1, that belongs to natural number. So in this case, see, additive identity was missing, but multiplicative identity 1, it belongs to natural number, fine. Then if we talk about inverse, अब इन्वर्स में खास बात क्या थी कि वहाँ पे हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का देखना है, तो एक बात तो क्लियर है कि सेट नेचुरल नंबर का है तो वहाँ तो ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्वर्स ढूंढना है। हमें पता था बी डैश क्या आया था, 1/a, यही आया था इन्वर्स, ठीक है। नहीं आया था तो डेफिनेशन लगा के निकाल लेना। अब अगर 2 है, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हम कि हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली 1/2, मतलब 1/2 इज गोइंग टू बी द इन्वर्स ऑफ 2, बट 1/2 सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है। देखो आप, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू सेट नेचुरल नंबर से, इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट 1 एलिमेंट। सिर्फ एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो कौन है, वो 1 खुद है, क्योंकि 2 के लिए 1/2 आएगा, वो बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर में। 3 के लिए 1/3 आएगा, वो बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर में। तो सिर्फ 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी किसी के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई होंगी सारी चीज़ें। तो लाइक दिस यू कैन सी विच प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड इनसाइड अ सेट और विच प्रॉपर्टीज आर नॉट। बट अगर किसी एक स्टेप पे कोई भी प्रॉपर्टी फेल होगी सो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके पास कि ये फील्ड है या नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर योर ओन नॉलेज, ठीक है। सो ये हो गया, दैट इज़ वाई यू हैव नेवर हर्ड दैट वी आर टेकिंग नेचुरल नंबर एज अ फील्ड, फाइन। So let's go to another example. Now suppose we considered f as set of integers over the binary operation addition and multiplication. Now if we want to see whether this is a field or not, so वैसे तो हमने याद कर रखा है कौन कौन सा field है कौन कौन सा नहीं है, but still we will try to understand it with the help of the definition, okay. So in this case if we talk about z plus, okay, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट z प्लस, तो आपको पता है कि किसी भी दो इंटीजर्स को अगर आप ऐड करोगे यू विल ऑलवेज गेट अ इंटीजर। एसोसिएटिविटी वहाँ सेटिस्फाई होती ही होती है। आइडेंटिटी की अगर आप बात करोगे तो e इज़ इक्वल टू 0, किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करोगे तो वही इंटीजर मिलेगा, तो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी भी है। देन अगर आप a है तो उसमें -a ऐड कर दोगे तो वो आपको क्या दे देगा, ये मतलब b इज़ इक्वल टू -a। एडिटिव इनवर्स भी जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी है
हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी, तो आपको पता है कि कोई भी दो इंटीजर a प्लस बी करो या b प्लस ए, इट विल ऑलवेज गिव यू सेम रिजल्ट, ठीक है। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू z डॉट। अब z डॉट का जब आप देखोगे तो वहाँ क्या हो रहा है, दो इंटीजर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज इंटीजर मिलेगा, ये तो ठीक है। दो इंटीजर्स में अगर आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होगी ही होगी। नाउ वी टॉक अबाउट आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ क्या थी, 1 थी। किसी भी एलिमेंट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वही एलिमेंट मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो 1 होगा। तो 1 तो हमारे पास इंटीजर है ही, तो मतलब वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, मतलब इम्पॉर्टेंट ये था कि ये जो e इज इक्वल टू 0 आया है ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट किया, तो इनवर्स भी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास आइडेंटिटी था वो, ये इनवर्स होना चाहिए, यानी फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट विच बिलोंग टू z देयर मस्ट एग्जिस्ट b डैश फ्रॉम z सच दैट a इंटू b डैश इंटू a मस्ट बी इक्वल्स टू 1। बट आप देखो b डैश अगर निकालोगे तो 1 बाई a, so for all integer a which are non-zero, 1 by a is always not an integer. Suppose I took a is equal to 2 which belongs to integer, b क्या आएगा 1 by 2, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाएगी, बट इट डज नॉट बिलोंग टू z। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि अगर आप देखोगे केवल 1 एक ऐसा एलिमेंट है और -1 एक ऐसा एलिमेंट है। ओके, लेट्स डू इट इन अनदर स्लाइड। a इज इक्वल टू 1 लोगे तो आपको पता है 1 इंटू 1 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे ये a है, ये b डैश है, ये आइडेंटिटी है, ठीक। अगर आप a इज इक्वल टू -1 लोगे तो -1 में क्या मल्टीप्लाई कर दे, -1 ही, तो 1। तो इसके लिए इसका b डैश क्या आ रहा है 1, इसके लिए इसका b डैश क्या आ रहा है -1। लेकिन अगर आप 2 लेते हो, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट जो कि नॉन जीरो हो, तो 2 के लिए 1/2 लेना होगा, तो इसके लिए b डैश जो है वो 1/2, बट इट डजेंट बिलोंग्स टू इंटीजर, बट यहाँ पे तो ये बिलोंग कर रहा है, यानी एक्सेप्ट 2 एलिमेंट्स नन ऑफ द एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पूरे z सेट में केवल 2 एलिमेंट हैं 1 और -1 जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो है 1 और -1। उनके अलावा किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा है, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट है उन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो फील्ड बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z जो है वो भी हमारे पास क्या नहीं है, फील्ड नहीं है। इसलिए आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि z इज अ फील्ड। उसके पीछे लॉजिक देखो, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी एलिमेंट के पास एक्सेप्ट 1 एंड -1, ठीक है। आगे कॉम्यूटेटिविटी वगैरह हमको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। I told you that if at any step that property fails, you need not to check further which properties are holding or not. Fine. So that is why Z is not a field. Let's talk about another example, and that is what? That is our set of rational number. Fine. So here we have our set of rational number Q. If we talk about this over the same binary operation, addition and multiplication, so if you see closure property, so this holds from the that point that Q is a subset of real number, and if you know add any two real number, it will always give you a real number. So in a similar case, if you add any two rational number, it will always satisfy the property of closure. Then again associativity holds. Okay, again if you see that e is equal to 0 was there, so it belongs to rational number, here also it holds. Fourth property was your additive inverse, so b is equals to -a will always belong to Q for all a which belongs to Q. If a is a rational number, then -a will always be a rational number, and their sum will give you what? Identity is equal to 0. So your identity also holds from here. Fifth point is your inverse. So what about inverse? Inverse, okay, this, just give me 1 minute. This was your identity,
and this was your inverse. This was your inverse because b is equals to minus a is the inverse. Then last is the commutativity. So you know that since it holds in real numbers, so it will hold in subset of real number also, that is q. So if you add any two rational number, they will always give you same result whether you do a plus b or b plus a. So commutativity also holds. So there is no problem with respect to any of the property with respect to the binary operation addition. Now you want to go for q dot. So here what will be? First is closure. If you multiply any two rational number, you will always get a rational number. It means your closure property holds. Fine. Then we'll go for associativity. So associativity also holds. I think these are the things which you already know. There is nothing to do a lot about it. Then if you talk about identity, so you know that e dash is equal to 1 was multiplicative identity and 1 is a rational number, so identity also holds. Then what they were saying, that for all non-zero element which belongs to q, there must exist b dash belonging to q such that b dash a is equal to a, b dash must be equal to 1. So b dash is equals to 1 by a, and that is very clear that this will always belong to q. Whenever a is a rational number, your 1 by a is also going to be a rational number. It means what? And obviously a is non-zero. So it means a multiplicative inverse for every rational number, every non-zero rational number exists. So fourth property is also holds. Then fifth, commutativity. You multiply any two rational numbers, either you do a dot b or you do b dot a, the result always holds. So commutativity also holds. Now if we go to distributive laws, that is a dot b plus c. So it is going to be what? For all a, b, c from the rational number. Now you see here, a dot b plus a dot c. So this will also holds from where? Because b plus c is going to be rational number from closure property. Their multiplication will also be a rational number from closure property. And if you do it here, since this is the subset of real number, this will hold from there only. This we have learned from the very beginning. So this will also hold, and then because rational number, it will automatically hold all these properties. So that is why what will happen, since this q plus dot satisfies all 12 properties, so we are able to say that f is equal to q is a field. And that is why linear algebra अगर आपने पढ़ी होगी पहले, तो आपने कई जगह देखा होगा कि रैशनल नंबर की फील्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रैशनल नंबर की फील्ड यूज़ कर रहे हैं. वाई? बिकॉज दिट सेटिस्फाइज ऑल 12 प्रॉपर्टीज दैट अ नॉन एम्प्टी सेट मस्ट सेटिस्फाई टू बिकम अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशंस. फाइन. सो अब तक हमको क्या मिला? अभी तक हमने दो नॉन एम्प्टी सेट देखे, नेचुरल नंबर, इंटीजर, जो कि फील्ड नहीं थे. अब यहाँ पे एक हमने सेट देखा जो कि फील्ड बन चुका, और वो है रैशनल नंबर. लेट्स गो टू अनदर एग्जाम्पल, QC. ओके, दैट इज QC का मतलब क्या है? R minus Q, that is set of all irrational numbers which are not rational. So in this case what we will be doing, we will just see closure property. So अगर आप closure property देखोगे तो see root 2 belongs to QC, minus root 2 also belong to QC because they both are irrational number. But if you use your binary operation addition, it will give you 0, but it does not belong to what? Irrational number, because 0 is a rational number. So closure ही fail हो गया, पहले ही step में चीज़ें fail. तो direct क्या बोल देंगे हम लोग यहाँ से? We will be saying that QC is not a field. इसलिए आज तक आपने नहीं सुना कि सेट ऑफ रैशनल नंबर को फील्ड लेना है हमको. ठीक है. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे जाओगे, एसोसिएटिविटी, फिर देखो आइडेंटिटी मिसिंग हो जाएगी. आइडेंटिटी क्यों मिसिंग हो जाएगी? क्योंकि ई इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर. आगे भी बहुत सी प्रॉपर्टी फेल होंगी, बट हमको उस पर नहीं जाना है. ठीक, बिकॉज दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. बिकॉज एक चीज़ फेल हो गई तो बाकी चीज़ों को हमें क्यों ही चेक करना. फाइन. Let's go to another example, which is our set of real number over the given binary operation addition and multiplication. So अब तो इसमें तो पता ही है मैम, हमने तो हमेशा से याद कर रखे हैं set of real number is a field. I know that you people have remembered that, but थोड़ा सा property wise देख लेते हैं. If you talk about R plus, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे
कि यहाँ पे इसके लिए क्लोजर दो रियल नंबर्स को ऐड करना ऑलवेज रियल नंबर, एसोसिएटिविटी तो यहाँ पे होल्ड होती ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देन आइडेंटिटी अगर आप देखोगे तो किसी भी एलिमेंट में अगर हम ज़ीरो ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास सेम एलिमेंट दे देगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी है। इफ़ वी टॉक अबाउट इनवर्स, सो हर एक एलिमेंट बी के लिए बी इज इक्वल्स टू माइनस ए, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है, सो इनवर्स भी हो गया। कॉम्यूटेटिविटी तो ऑलवेज होल्ड करता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रियल नंबर के सेट में, ठीक। नाउ वी विल सी अबाउट व्हाट, वी विल सी अबाउट आर डॉट। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमको, कोई भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो ऑलवेज रियल नंबर, एसोसिएटिविटी होल्ड होगा ही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी की अगर आप बात करोगे तो किसी भी एलिमेंट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि बना मतलब हम ऐसा किसी एलिमेंट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम एलिमेंट आ जाए, तो ऑब्वियसली वो वन होगा, और वन तो रियल नंबर का पार्ट है, तो आइडेंटिटी भी है मल्टीप्लिकेटिव वाली। इनवर्स की अगर आप बात करोगे, सो फॉर एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट विच इज़ इन रियल नंबर b इज इक्वल्स टू 1/a इज ऑलवेज इन रियल नंबर, सो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। 2 इंटू 1/2 1 आ रहा है, 1/2 बिलोंग्स टू आर। 1/3 है, उसके लिए 3 इनवर्स हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1/3 को, 1 आ गया, ठीक है। कॉम्यूटेटिविटी ऑलवेज होल्ड्स, क्योंकि ये रियल नंबर की बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ है जो हम बचपन से देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हमको, क्योंकि ये तो होल्ड होने ही होने हैं। a डॉट बी प्लस सी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, then a plus b dot c will always be equals to a dot c plus b dot c. These also get satisfied. So we got our another set, and what is that set of real number? This is also a field. तो अब तक हमने देखा सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास क्या था, फील्ड, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है हमारे पास, फील्ड। बाकी अब तक हमने जो पढ़े वो सारे के सारे कैसे थे, नॉन फील्ड, ठीक है, वो फील्ड नहीं थे हमारे पास। Then let's go to another example, that is our set of complex number. जिनको नहीं पता है, let me define it. a plus ib where your both a and b belongs to real number, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, we add the real part with the real part and we add the imaginary part with the imaginary part, ठीक। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे, क्योंकि हमें काम में आएगा। सो सपोज वी हैव a प्लस आई बी एंड वी वॉन्ट टू मल्टीप्लाई इट विथ c प्लस आई डी, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ मिलेगा हमको क्या, a इंटू सी मिल जाएगा, ठीक है, वी विल गेट a इंटू सी प्लस आई टाइम्स a इंटू डी प्लस आई टाइम्स b इंटू सी एंड माइनस आई स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1 b इंटू डी। सो वट वी आर गेटिंग ए सी माइनस बी डी प्लस आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइन। सो अब ये बाइनरी ऑपरेशंस थे अगर हमारे पास, तो क्या ये फील्ड बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज जो है वो रियल नंबर से यूज हो जाएंगी, कैसे, क्योंकि ए बी कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से, सी और डी कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से, तो हम उनमें ही चीज़ों को यूज़ कर देंगे, ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे सी प्लस के रिस्पेक्ट में बात करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी तो आपने ऐड किया, यहाँ पे देखो ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, क्योंकि a प्लस सी रियल है, b प्लस डी रियल है, तो नाउ दे आर सम विच इज a प्लस आई बी, सपोज ऐसा कुछ मानते हैं, तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो क्लोजर सेटिस्फाई होगा। एसोसिएटिविटी हो जाएगा, रियल की प्रॉपर्टी यूज करोगे। आइडेंटिटी की बात करोगे तो a प्लस आई बी में ऐसा क्या ऐड करें कि a प्लस आई बी ही आ जाए, तो हमें पता है 0 प्लस 0 आई ऐड कर लो, देखो यहाँ पे a प्लस आई बी एंड प्लस 0 प्लस आई टाइम्स 0, ठीक है। व्हाट यू विल डू, आप रियल को रियल में ऐड करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करोगे, व्हाट रिजल्ट यू आर गेटिंग, a प्लस 0 एंड देन प्लस आई टाइम्स b प्लस 0 विच इज नथिंग बट व्हाट, a प्लस आई बी। तो ये भी है, इनवर्स भी होगा, a प्लस आई बी में क्या ऐड कर लें, माइनस ए एंड प्लस आई टाइम्स माइनस बी, ठीक है। तो आप देखो इसको जब आप ऐड करोगे a प्लस आई बी में रियल को रियल के साथ, तो 0 प्लस 0 आई मिल जाएगा, ये भी है। कॉम्यूटेटिविटी होगी ही होगी, ठीक है, रियल की प्रॉपर्टी लगा देना। ऐसे ही आप सी डॉट के रिस्पेक्ट में बात करो, अभी देखा ये दिख रहा है हमको, दिस इज अगेन व्हाट, सी प्लस आई डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्लोजर सेटिस्फाई, एसोसिएटिविटी होगी ही होगी।
देन आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो ए प्लस आई बी में क्या मल्टीप्लाई कर दें हम, देखो आप 1 प्लस 0 आई मल्टीप्लाई कर देते, क्या बन जाएगा, ए प्लस आई बी इंटू 1 ही बनेगा, विच इज़ दिस। और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है हमारे पास, तो आइडेंटिटी भी है। इन्वर्स भी होगा, ए प्लस आई बी में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें हम कि 1 मिल जाए, तो आप देखो यहाँ पे सी प्लस आई डी एक नंबर है, तो सी प्लस आई डी की वैल्यू आपको मिल तो रही है क्या, ए प्लस आई बी, तो इसको आप रैशनलाइज कर लो यहाँ पे, तो आपको फिर से आपका रिजल्ट मिल जाएगा क्या, ए माइनस आई बी एंड देन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर लिखोगे, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये डिफाइंड भी है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इधर ए विल बी नॉन जीरो और बी विल बी नॉन जीरो और बोथ विल बी नॉन जीरो, तो ऑब्वियसली दिस डिनोमिनेटर पार्ट हैज़ टू बी नॉन जीरो, तो इन्वर्स भी है, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होगी ही होगी। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में चले जाना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी दोनों क्या हो जाएंगे, होल्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन नाउ दैट ये जो आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी क्या बन गया हमारे पास, फील्ड बन गया, ठीक है। तो अब तक हमने कितने सेट देखे हमारे पास जो फील्ड थे, जैसे हमने सेट ऑफ रियल नंबर देखा, रैशनल नंबर देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, है ना, ये सारे के सारे अब तक हमने जो सेट पढ़े हैं ये हमारे पास क्या थे, दे ऑल वर फील्ड। और वहीं पे दूसरी तरफ हमने क्या देखा, दूसरी तरफ हमने देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, देन इंटीजर है, इरैशनल नंबर है, ये सारे हमारे पास फील्ड नहीं थे, ठीक है। अब तक आपको सर ने पढ़ा दिया है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर आ चुका है आपके पास। नाउ आई विल टॉक अबाउट जेड, ठीक है। जेड के बारे में आपने सुना ही होगा, आई होप 0 1 2 3 अप टू n-1, राइट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। और इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन एंड एडिशन मॉड्यूलो एन, ये यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक, वो भी आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है। सो नाउ यू विल टेल मी वेदर दिस Zn इज़ अ फील्ड और नॉट, ठीक है। और अगर ये फील्ड है तो क्या फॉर ऑल n के लिए है या कुछ स्पेसिफिकली n डिफाइंड है जिनके लिए ये फील्ड होगा, दिस इज़ योर होमवर्क पार्ट, ओके। अर्लियर आई यूज्ड टू टेल इट इन डिटेल, बट आई थिंक अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं क्योंकि साइड में आपका ग्रुप थ्योरी का कोर्स भी चल रहा है। तो जो बच्चे ग्रुप थ्योरी का कोर्स नहीं देख रहे हैं वो ग्रुप थ्योरी का कोर्स भी देखते जाएं, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, नॉट लाइक मतलब कॉन्सेप्ट्स भी अगर आप देखोगे थोड़े बहुत रिलेटेड है, आगे तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, बट कुछ बेसिक चीज़ें समझने के लिए वहाँ की हेल्प हम लोग लेते हैं। तो अब आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपके लिए वहाँ पे ग्रुप थ्योरी भी चल रहा है सर का, यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा चल रहा है, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से लेके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स कि Zn इज़ अ फील्ड फॉर ऑल n और फॉर स्पेसिफिकली फ्यू n's, ओके। दिस इज़ योर होमवर्क पार्ट। सो आज हमने फील्ड देख लिया और अब से इस कोर्स में हम जहाँ कहीं भी फील्ड की बात करेंगे तो ज़्यादातर हम जिन फील्ड्स की बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में वो यही 3 फील्ड होने वाली है, ठीक है। तो हम ये जो Zn है वो जो भी आप आंसर बताओगे, अभी मैं वो नहीं ले रही हूँ, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे या करेंगे तो बहुत कम। दीज 3 फील्ड्स वी आर गोइंग टू यूज़ थ्रू आउट दी होल कोर्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, इसलिए फील्ड समझना बहुत ज़रूरी था। आगे से मैं जब कभी भी आपको बोलूँगी कि R इज़ अ फील्ड ओवर R, और हम बोलेंगे Q इज़ अ फील्ड ओवर R, या सॉरी Q इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर R, और R इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर R, या फिर हम बोलेंगे C इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर C और R। सो अब आपको पता होगा कि ये फील्ड क्या है, ठीक है। Now you will be able to think, okay, these are the properties which get satisfied inside this set, that is why this is the field, okay. So that's it about this lecture. From tomorrow we will be starting with the vector space along with the some standard examples, okay. So that's it for today's class. Thank you so much.